أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آ رہی ہے سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزشتہ کلاس میں ہم نے ختم کیے تھے کلاس حسر کا مفہوم پیدا کرنا جملہ اسمیہ میں تخصیص یا حسر کا مفہوم پیدا۔ حسر کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز کو کسی چیز کون ہے کلاس کر لو کیا کام ہے؟ ہے مخصوص کرنا، ایکسکلوسیو کرنا، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا بتانے کے لیے یہ ترکیب کی جاتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں تخصیص یا حصر کا مفہوم پیدا کرنا یہ ایک اہم بہت ہی اہم سبق ہے۔ تو سب لوگ ذرا مائک میوٹ ذرا مائک میوٹ کیجئے جناب عالی آپ اور سنیے۔ تو اس کا طریقہ حکمت یہ ہے، جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور رفع حلق، خبر نکیرہ ہوتی ہے وہ بھی رفع حلق۔ تو یہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر پیدا کرتے ہیں ہم لوگ، ضمیر یعنی کہ رفع حلق میں لے آتے ہیں۔ اس کی تھیری یہاں پہ میں نے لکھا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے، نیلے میں پڑھیے۔ یہ نارمل جملہ اسمیہ ہے، خالد طبیب، یعنی خالد ہے کوئی ایک ڈاکٹر۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں گے، خالد جو ہے معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور اعرابی حالت میں رفع ہے، اور طبیب یہ نکیرہ خبر ہے، رفع حالت میں ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان کیا کریں گے آپ؟ ایک منفصل ضمیر لے آئیں، منفصل یعنی ہوا، ہما، ہم۔ اچھا، کون سی ضمیر لیں گے بھائی؟ مبتدا کے موافق لیں۔ اب مبتدا جو ہے خالد جو ہے، تو خالد ان کو ہوا ہے، اگر زینب ہوتی تو ہی ہوتی، تو اس کے موافقت میں لانا پڑے گا، اس کے موافق یعنی اس کے برابری کی لانا۔ اور وہ جو لانے کے بعد میں آپ کا جو خبر ہوتی ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے، تو اس کو آپ کو معرفہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، پہلے میں خالد ہے، طبیب، تو خالد کے بعد ہم نے ہوا لائے ہیں اور طبیب کی جگہ پہ الطبیب کرے، تو فرق نظر آ رہا آپ کو؟ ایرو مارے ہیں دو، تو عربی میں یہ عبارت ہوگی خالد هو الطبیب، هو الطبیب، خالد هو الطبیب، یعنی خالد ہی ہے، خالد کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایسی ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر دیتی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو سمجھا تو ہاں بولیے، نہیں سمجھا تو نہیں بولیے، تاکہ میں سمجھاؤں آپ کو۔
क्या ऑनलाइन पे कोई भी नहीं है? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? शायद आवाज नहीं आ रही। आपको आ रही है सब? ये लोग गए था। ठीक है, इनकी आवाज आई तक रुकेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही जी सर? हाँ जी, तो थोड़ा रिस्पांस दीजिए, आवाज आई तो। जी जी जी। जी कोई कोई नारा नारा नहीं है क्या? जी नहीं सर। तो फिर समझा तो हाँ बोलिए, नहीं समझा तो ना बोलिए, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सर दोबारा समझाइए सर प्लीज। इस टाइप के जुमले को जुमला इस्मिया में तखसीस पैदा करना कहते हैं। तखसीस के मायने होते हैं मखसूस करना। इसको हसर का मफहूम भी पैदा करना कहते हैं। इसका करने की तरकीब ये है कि आप जानते हैं जुमला इस्मिया में दो जुज होते हैं। जानते हैं? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर के दरमियान एक मुनफसिल ज़मीर ले आते हैं और इसका जो खबर है उसको अलिफ लाम लगा के मारिफा करें। तो यहाँ पे आप देखिए अल्लाहु गफूरुन लिखा। इसके मायने हो रहे अल्लाह है माफ करने वाले। अब यहाँ पे हमें इस टाइप का क्या जज्बात पैदा करना है कि अल्लाह ही है माफ करने वाला। तो इसका तरीका ये है, अल्लाह जो मुब्तदा इसमें जलाला है, अल्लाह हुआ है, तो अल्लाह के मुताबिक में एक दमीर लाई जाती है हुआ, और गफूर के जगह पे अल गफूर यहाँ पे इसको मारिफा किया है। ऐसा करने से क्या होगा? अल्लाह ही गफूर है ऐसा होगा। और वही चीज मैंने यहाँ करके बताया हूँ। कालिम है एक नकीरा को मारिफा बनाना कैसे? अगर देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, मेरे को पढ़ के बताइए। पहला क्या है? खालिदुन है, उसके बाद में तबीबुन नकीरा है ना, तो नकीरा को मारिफा बनाना है और दरमियान में एक जमीर लाना है। दिख रहा है ना आपको? सर फिर ये कौन सा जुमला मतलब इसमें आज बनता है ये? जुमला इसमी है। जुमला इस्मिया में उसके अंदर जो मफहूम पैदा होगा वो है खालिद ही एक डॉक्टर है। खबर फिर यानी मार खबर खबर हाँ, मार हो जा रही खबर। ये खास जुमला है भाई, तो इसके अंदर आपको मफहूम वैसा बनाने के लिए बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। जी सर। समझे? जी सर। जी अच्छा, सर। मैं इतना इसके पीछे लगकर क्यों बता रहा हूँ, जरा मालूम है क्या आपको? जी हर सर। एक कुरान की आयत जब खत्म होती है वो इसी तरह के तर्ज पर आता है, जैसा मैंने यहाँ लिखा हूँ, अल्लाह गफूर है ना, अल्लाह हुवल गफूर, ऐसा आता है। अगर हमने बोले अंता वहाब, तो फिर उसको इन्ना वगैरह लगा के इन्ना अंतल वहाब ऐसा बनता है। तो ये सीखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने आज का दिन रखा था इसके लिए। लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, तो फिर जाने दो। नहीं सर, अच्छा मालूम हो रहा सर, समझ में आ रहा। समझ में? जी सर। जरा पढ़िए, नंबर 2 की लाइन पढ़ के सुनाइए मुझे। जी सर। पढ़िए। अल कुरानु हक़ुन। हाँ, तो अब हम बताएंगे, सुनिए कि कुरान है हक, हक़ है। कुरान है सच,
تو اس کے اندر اور طاقت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ بتانا ہے قرآن ہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے، دوسری کوئی کتاب حق نہیں ہے، قرآن ہی حق ہے۔ ایسا بنانے کے لیے القرآن کو تبدیل نہیں کریں گے، اس کے بعد قرآن کو دیکھیں گے، قرآن واحد مذکر رہنے سے اس کی ضمیر ہوا لے کر آئیں گے اور حق کو الحق کو کریں گے۔ جی سر، جی سر۔ تو اس کے معنی القرآن هو الحق، حق، ہاں حق نہیں ہے، حق، هو الحق، هو الحق، ایک ہی بار حق، دو بار حق حق۔ هو الحق، جی جی، ہاں اب سر۔ تیسری لائن پڑھ بیٹے، تیسری لائن پڑھ۔ اولئک، اولئک اولئک مفلحون۔ ہاں اب ذرا غور کرو، اولئک کی ضمیر کیا بنیں گی؟ اولئک کے مطلب کیا ہے؟ جمع اس کے، میں اشارہ بعید جمع کے لیے ہے، جمع کے لیے، اس میں اشارہ جمع بعید کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہم دو بھی چیزیں لا سکتے ہیں، وہ ہم بھی لا سکتے ہیں، ہن بھی لا سکتے ہیں، لیکن جب کچھ نہیں دیا گیا تو پریفرنس دیا جائے گا مذکر کو، تو پھر لکھیں گے اولئک کو برقرار رکھیں گے اور اس کے اندر سے ایک ضمیر اس کے موافقت میں نکالیں گے، ہم نکالیں گے، اور ہم کو پڑھنا نہیں آ رہا اس لیے ہم المفلحون۔ تو کیا پہلے کیا تھا؟ مفلحون تھا، تو اب اس کو معرفہ کرے المفلحون۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ خبر کو معرفہ بنانا پڑتا ہے۔ جی سر، جی سر۔ اب نیچے کا پڑھیے، الکافرون ظالمون۔ اب کافرون جمع ہے، مذکر ہے، تو ان کی جو ضمیر نکلے گی ہم نکلے گی، تو ہم ڈالیں گے اور اپنی خبر کو معرفہ الف لام لگائیں گے، الکافرون هم الظالمون، هم الظالمون۔ کافر تو مطلب پہلے تھا سب کافر ظالم ہے، اب بن گیا سب کافر ہی ظالم ہے، یعنی کافروں کے علاوہ ظالم نہیں ہے کوئی بھی، ایسا اس کا ایکسکلوسیو یعنی کہ مخصوص معنی نکلتے ہیں۔ ہاں اب نیچے کا پڑھیے، ھذا کتاب، کتابوں کا، کتابوں کا، ہاں ھذا کا مطلب یہ ہے تیری کتاب۔ اب ھذا کے موافقت میں ہم کو ضمیر لانا ہے، ھذا کے لیے ہوا لکھ سکتے، اگر اشارہ نہیں کرے تو ہوا بن جاتا ہے وہ، تو واحد مذکر کے لیے قریب کے لیے، تو ھذا ہوا کتابوں کا، یہ ہے تیری ہی کتاب۔ سر یہاں الف لام نہیں آیا۔ اب بیٹے یہ جو ہے ابھی اپن پڑھ چکے ہیں نا، کتاب و اخف کیا ہوا ہے اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، کتابوں کا جو ہے یہ ضمیر ہے، متصل ہے اور معرفہ ہے، اور اس کے تابع کتابو ہے، کتاب کے مضاف الیہ میں، مضاف الیہ کے تابع میں مضاف ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، اس لیے کتاب بھی معرفہ ہے، اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر، جی سر، سمجھ میں آیا سر، ماشاء اللہ۔ جزاک اب اللہ نیچے خیر۔ مدرسون، سونا، سب ٹیچرس ہے۔ اب یہاں پہ کچھ غلطی ہے تو نکالو، بڑا دیکھیں گے غلطی دکھ رہی میرے کو، ٹائپنگ مسٹیک دکھ رہی ہے آپ کو، دیکھو ہاں اولائی، هم المدرسون، نہیں ہے سر غلطی۔ نہیں بیٹا پہلے لائن پڑھو، پہلے لائن میں جملہ اس میں آئے گا، دیکھو ہؤلائی هم المدرسون، ادھر کائے کو جاتی ہے، ادھر کا پڑھنا پہلے، ہؤلائی الف لام ہے سر، المدرسون۔ الف لام نہیں ہونا وہاں پہ، کیونکہ وہ مدرسون نہیں بن سکتا، وہ بن جی جا سر، رہا ہے مرکب، تو وہاں پہ پڑھتے ٹائپے پڑھیں گے اپن ال نکال دیں گے، میں ٹائپنگ درست کرتا ہوں، ہاں اولائی مدرسون نہ ہونا چاہیے، اگر ال لگا دیتے ہیں تو ناقص بن جائے گا وہ۔ ہاں جی تو اب ہم کو یہاں پہ ہم لگانے کے بعد الف لام لگائیں گے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، جی کوئی غلطی، کوئی ٹائپنگ کی غلطی بھی انسان کو سکھاتی ہے سمجھ؟ اچھا آخری کا جملہ پڑھیے،
हाजिही बिंतुन, ये है एक लड़की। अब हाजिही की जमीर क्या आएंगी, ही आएगी ना, तो यहाँ पे हाजिही हिया और बिंतुन के जगह पे अल बिंतु करे तो क्या हो जाएगा, यही तो है लड़की, यही तो है लड़की। अब ये जो है जो, हाँ, जो आप पढ़ाएंगे ना, तो आपको पढ़ाने के लिए आसान तरीन मैंने ये पिक्चर निकाला ताकि आपको समझ में आए, इसमें और कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पे खालिदुन है, खालिदुन कौन है भाई, इसमें अलम है, खालिद है कोई एक डॉक्टर। अब इसके अंदर हमको बनाना है, दरअसल खालिद ही डॉक्टर है, खालिद इस डॉक्टर है, ऐसा बनाने के लिए आखिरी लाइन पढ़िए, खालिदुन, वल खालिदुन वल तबीब तबीबु तबीबु अल तबीबु वल तबीबु। खालिद क्या क्या डॉक्टर है। हाँ, क्या क्या तब्दील करे भाई हमने, मुब्तदा और खबर के बीच में एक ज़मीर लाए जो रफा हालत में है, और अहम बात यह है कि इसकी खबर को अल लगाए। बड़ा अजीब है ना, हाँ अजीब है, लेकिन ये तरीका है कुरान की ग्रामर में इस्तेमाल करने। अब यहाँ पर एक मिनट तक का सोचो, देखो, लिखो, फोटो लो, क्या करते करो, और इसको पक्का करो ताकि मैं आगे कुरान के एग्जांपल्स लूं, ताकि आपको समझे इतना अहम क्यों है, मैं इतना क्यों पीछे पड़ा उसके। तो आपका हो गया तो मेरे को बोलो, मैं आगे चलता हूँ। ये भी जो है ना एग्जांपल्स की आप एक तस्वीर रख लीजिए अपने पास। अभी भी किसी को नहीं समझाऊंगा तो बोलिए, मैं वापस समझाऊंगा। तो इसका नाम ही है जुमले इस्मिया में तखसीस, तखसीस है ना मखसूस, एक्सक्लूसिव बनाना है इसको, दूसरा कोई नहीं वही है ऐसा बताने के लिए। इसके दो नाम है, हसर पैदा करना या तखसीस है, जुमले में तखसीस या हसर का मफहूम पैदा करना, ऐसे दो नाम है इसके ग्रामर की किताब में, जो बड़े बड़े उलेमाओं ने लिखे हैं उसके मुताबिक। ठीक है भाई, और ये आपके लिए सिर्फ जो 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 अनजान लोग हैं, जो नए नौ सीखे हैं, उनको सिखाने के लिए चार्ट है आपको, ताकि आप लोगों को सिखाएं। हाँ, आप मुझे इजाजत दी तो आगे जाता हूं मैं। जी सर, आगे चलिए। अच्छा, चलिए, अभी हमने देखे थे, देखिए ये जो आसमानी कलर में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में, वो सेम सेंटेंस है, खालिदुन तबीबुन। तो पहला काम गड़बड़ नहीं करना, पहला खालिद को चेक करना कि ये वाहिद मुजक्कर है तो इसकी जमीर निकलेगी हुआ। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं खालिदुन के बाद हुआ लिखूंगा और तबीबुन को अलिफ लाम दाखिल करूंगा। तो हरे में पढ़िए आप, खालिदुन हुवा तबीबु, यानी कि खालिद ही डॉक्टर है। दूसरा जुमला देखिए, हाजा किताबु का, ये है तेरी किताब। अब हमें उन्हें मान रहा नहीं, अपन ने बोले ये तेरी किताब है तो उन्हें मान रहा नहीं, तो फिर हम उसको ये तेरी किताब है ऐसा बोलना है, इसलिए हाजा के बाद हुआ लाए और किताबों का को इसलिए रखेंगे, तो किताबों का के अंदर मुदाफ जो है वो मुदाफ इलैह के ताबे रहता। अगर मुदाफ इलैह मारिफा है तो मुदाफ ऑटोमेटिकली मारिफा हो गया, फिर क्या बोलेंगे, ये यही है तेरी किताब। अगला जुमला, हाउलाए सादिकुना, ये तमाम मर्द लोग सच्चे हैं। अब दूसरे लोग उस पर एतराज कर रहे हैं, ऐसा कैसा बोल रहे हैं उनको सच्चे, तो वो नारे नहीं, इन्हों सच्चे है। तो फिर हम बनाएंगे उसको, हाउलाई हुमुल सादिकुना, यही लोग हैं सच्चे। उसके नीचे का जुमला देखो, किताबों का जदीद, तेरी किताब है नहीं। अब उन्हें मान रहा नहीं तो उसको बताओ, किताबों का, किताब क्या है भाई, हुआ है। मुदाफ इलैह में हमेशा मुरक्कब इजाफी में मुदाफ की तरफ नजर रखना, तो हर चीज मुदाफ के मुताबिक नहीं होती। तो किताब जो है हुआ है, तो हमने लाए किताब का हो अल जदीद, हुआ के बाद अलिफ लाम दाखिल करे, फिर मायने हो रहे तेरी किताब नहीं है।
अब नीचे का जुमला देखिए, हाज़िही सय्यारतुका, ये है तेरी कार। अब उन्हें मान रहा नहीं तो उसको फिर से एक्सक्लूसिव बना के बोलो, हाज़िही मुअन्नस का सीगा है, इसमें इशारा करीब का है इसलिए ही आ गया, हाज़िही हियस सय्यारतुका। अब यहाँ पे अल क्यों नहीं है, क्योंकि का जो है मारिफा है, इसलिए सय्यारा का डायरेक्ट मारिफा हो गया, ये ही तेरी कार है। अब देखो अंता मरीज़ुन, अब इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अंता को और कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। अंता को क्या, अब इसकी जमीर क्या बनेगी, अंता का मरीज़ुन लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक जो है एक्सेप्शन है। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं हम, अंता मरीज़ुन को जो बदलने का तरीका है वो ये है, अंता के साथ इन्ना लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, बोलो इन्ना। जब इन्ना लगाएंगे अंता के साथ तो इन्ना की खसलत है कि वो अपने इसम को नसब कर देता है। अंता का नसब का है, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंति की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्मा, ठीक है, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। तो यहाँ पे लगाए हमने इन्नका मरीज़ुन, इन्नका मरीज़ुन यानी बेशक तो मरीज है। अब हमको हसर का मफहूम पैदा करना है और बोलना तू ही मरीज है, बोलो इन्नका अंतल मरीज़ो। इन्नका अंतल मरीज़ो। हाँ, यहाँ से कुरान के अंदर की आयतें शुरू हो रही है, अब जरा चेक करो। सर हर पढ़िए। हर जगह अंता के साथ मतलब इन्ना के साथ अंता ही लगाना होगा जब हसर का मफहूम पैदा करेंगे तो। हाँ तो फिर एक का किससे बनाए थे, देखो इन्ना हो हुआ का है, इन्ना हुमा हुमा का है, इस तरह इन्ना का अंता का है। याद आया आपको? ठीक है, इन्ना का नहीं आया तो पूछो, नहीं आया तो पूछो। देखो उसका उसका अपन ने करे थे ना, देखो इन्ना हो, इन्ना हुमा, इन्ना हूं, इन्ना का, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम। तो जब वो इन्ना को लगाती है तो नस्बी जमीर बन जाती है, मुत्तसिल जमीर नस्बी हालत, ठीक है। लेकिन जो बीच में डाला जा रहा है ना, ये यहाँ पे नस्बी है, लेकिन यहाँ पे की जो जमीर डाली जा रही है रफा हालत में डाल रही है। तो क्या हुआ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम। तो यहाँ पे अंता आना पड़ता, यहाँ पे बीच में जो है नहीं आएंगे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, आना नहीं। अभी जब सब दिखेगा आपको इसके अंदर, तो अब जरा देखेंगे हम यहाँ, ये जरा पढ़िए, हुआ तव्वाबुन रहीमुन, पढ़ो। हुआ तव्वाब रहीम। रहीम। तो इसका मतलब है वो है तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। लेकिन अभी हमें इसके अंदर ऐसा बताना है, हुआ यानी अल्लाह, अल्लाह ही है तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। तो हमने इन्ना लाए, इन्ना लाए तो क्या बन गया, इन्ना। हुआ क्या बनता है, हु बनता है, इन्ना हु। और फिर नॉर्मल जो जमीर है हुआ हुमा हुम वाली हुआ लगाए, इन्ना हुवा तव्वाबुर रहीम। हम पढ़ते ना दुआ, इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु ज़ल्मन कसीरा, पढ़ते ना, उसमें देखिए आखिर में ये आता है, इन्नका हुवा तव्वाबुर रहीम। अब मायने क्या बनेंगे जरा देखो, बेशक वो, बेशक वो वही है। जरा आप बोलोगे तो मैं बोलता हूँ। हाँ, बेशक वही है, बोलो बेशक वही है जो तौबा कबूल करता, जो रहम करता। तो यहाँ पे मैंने जो किस पे पढ़ रहा, मैं जो किस पे पढ़ रहा, मैं जो सिफत को जब अल्लाह के आता है तो उसको जो बोलना, उसको अल्लाजी की शक्ल में पढ़ते हैं। कैसा बोलेंगे, बेशक वो, बेशक वही है, बोलो बेशक वही है बेशक वही है तो जो तौबा और रहीम है, बेशक वही तौबा बहुत तौवाब और रहीम है, ऐसा माना ही होगी। यानी कि अल्लाह के अलावा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला दूसरा कोई नहीं है, ऐसा हमें लेना है। और अल्लाह की किताब में
आयतें इसी स्टाइल में खत्म होती है, जैसे ग्रीन में लिखा है ना मैंने, ग्रीन की जो है आप क्या कीजिए, आज रात को कोई भी एक सूरत निकाल के देखिए और आयतों के आखिर में देखिए, आयतों के आखिर में इस तरह से कंक्लूड करते अल्लाह ताला। अब दूसरी लाइन पढ़िए, हादा कससन हक्का। ये है तो क्या होगा, हादा क्या बन जाएगा, मुब्तदा बनेगा, और खसखसुन और हक्कुन क्या बनेगा, कोई मुझे बताइए कौन सा मुरक्कब बनेगा? क्या है तौसीफ है सर। क्यों भाई तौसीफ क्यों है, जरा बताइए भाई। दोनों बराबर, तौसीफी के बराबर है ना सर, दोनों दो मौसूफ और सिफत दोनों की मुनाफिकत होती रहती ना। मुनाफिकत नहीं बेटे, मुआफिकत यानी दोनों, मुनाफिकत रहते दोनों का DING मैच होता है, ऐसा बोलो। मैच होता है सर, इसलिए ये तो अब इसके मायने क्या होंगे? सिफत और मौसूफ है हाँ, इधर, ये हाँ, तो मायने हो, ये मायने है सच्चा किस्सा। सच्चा किस्सा है, सच्चा किस्सा। हाँ, आ गया ना। अब ये सच्चा किस्सा है तो अपने को बनाना यही तो, बेशक यही सच्चा किस्सा है, बेशक यही सच्चा किस्सा है। तो क्या करना अपने को, हाजा की जमीन को मिला के लाओ, इन्ना हाजा। अब हाजा किसके लिए आता है, वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है। तो वाहिद मुज़क्कर अपनी जो है मुनफसिल जमात में क्या आएगा, हुआ आएगा। क्या पढ़ेंगे, इन्ना हाजा हुआ, और जो खबर है उसको क्या करेंगे, अल लगाएंगे, अल खिस्सा, अल खिस्सु आ गया। क्यों बनेगा भाई, अलिफ लाम दाखिल करते ही तंवीन गई पेश आ गया, और उसकी सिफत में भी सेम तरीका आ गया, मौसूफ और सिफत बराबरी में आ गए, दोनों मारिफा बन गए। तो अब मायने बनेंगे, बेशक यही तो है सच्चा किस्सा। इसी तरह सूरह यूसुफ में लिखा है, यही तो है बेशक सच्चा किस्सा। तो हम परेशान होते हैं, ये क्या क्या आ रहा, इन्ना भी आ रहा, हाजा भी आ रहा, हुआ भी आ रहा, क्या है लिखे भाई ये, तो हमें समझ में नहीं आता। तो ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि कल आप कुरान के अंदर मुताला करेंगे तो ये चीजों से फायदा होगा। चलो आगे पढ़ो। हुदल हुदा, हाँ, हुदा हुदा अल्लाही, हुदा अल्लाही हुदन। अब जरा मुझे इसकी तरकीब बताइए, यहाँ पे मुब्तदा कौन है भाई? मुब्तदा बोलो मुझे। एक महीने से मुकम्मल हम मुजाफ मुजाफिल ही पढ़ रहे हैं, और अब आपको आना चाहिए ये। पहला इसम पढ़िए, क्या है, खुदा, बोलो। खुदा, खुदा और है इसको सर। अरे भाई मेरे को पहले सवाल आप पूछ रहा हूँ, जब मैंने पूछा जब तो नहीं आया आपको। आप बोलो इसकी ये मारिफा है कि नकीरा है? खुदा मबनी है, हुआ इसमें है। मैं पूछा आपको ये आम है क्या, तो आप बोल रहे नहीं ये सीताफल है। मैंने पूछा ये मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है। नहीं, नहीं मारिफा भी नहीं है, नकीरा भी नहीं है, ये अखफ किया हुआ है। इसमें मुजाफ मुजाफ इलैहि की तरफ से हाँ, सर, मुजाफ इलैहि की तरफ से है ना सर। मैं जो पूछा आप मुझे बताइए, आप मुझे भटकाइए मत। अखफ किया हुआ इसम है, उसके बाद में इसमें जलाला जरी हालत में है, तो अल्लाह की हिदायत, बोलो अल्लाह की हिदायत ही, अल्लाह की हिदायत है, एक हिदायत। सर इसमें क्या अखफ किया है, क्या अखफ किया है खुदा में? तो अब आप मुझे बताइए, मुजाफ में क्या हज़फ करते हम लोग? अलिफ लाम क्या? या तनवीन, या तनवीन, अलिफ लाम या तनवीन। तो बताइए यहाँ पे अलिफ लाम है क्या? नहीं है।
तनवीन है क्या? नहीं मुरक्कब फिर इजाफी अभी आपको नहीं, मेरा पूछना है कि आपको ये कब समझेगा? आप 1 महीना नहीं समझा, आप पूरा महीने से पढ़ा रहे हम, बराबर है? जी सर जी सर फिर आपका काम है पहले ही देखना, अकफ किया हुआ इसम दिखा तो मुदाफ होने के क्वालिफाइड होता हो, और उसके बाद वो फिर चेक करना कि दूसरा इसम के नीचे जेर है क्या, और वैसा होते ही फिर बोल देना ये मुदाफ मुदाफ नहीं। और हुदन जो है नकीरा है, अल्लाह की हिदायत है हिदायत, तो अब इसको हम बताना है बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत, तो कैसा बनेंगे? इन्ना करेंगे, क्योंकि अब मबनी आपने बोले थे बिल्कुल सही है, तो इन्ना लगाने से हुदा में कोई तब्दीली नहीं है, तो उन्हें मबनी है, अपना चेहरा बदलता नहीं वो। इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा, क्या बन गया? इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा, मतलब क्या होगा? इन्ना पे जरा अपना प्रोनाउंसिएशन करो, मायने बनाओ। इन्ना का मतलब बेशक, बेशक अल्लाह की हिदायत वही अल्लाह की हिदायत, बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, बाकी कोई हिदायत हिदायत नहीं होती अल्लाह की हिदायत के अलावा। चलिए चौथा सेंटेंस कौन पढ़ेगा भाई? एक ने पढ़ना और मेरे को समझा के बोलना क्या है। बोलिए, हाजा क्या है भाई? इस्म है, फेल है या हर्फ है? इसमें कौन सा? एक आदमी कौन सा इस्म है ये? मारिफा इसमें में इशारा कौन सा इस्म है बोले तो वहां बोलना इसमें इशारा है। इसमें इशारा मैं कोई फ्रूट के तरफ बता के आम की तरफ बोला ये कौन सा फल है, तो आप क्या बोल रहे हैं? मतलब ये टोकरी है। बड़े खतरनाक लोग है तुम। आम की तरफ बोले तो आम है बोलना। हाजा कौन सा इस्म है? इसमें इशारा है। इसमें इशारा बुझते खट 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 आना कि ये मबनी है, मारिफा है, वाहिद है, मुज़क्कर है, ऐसा खट से आना चाहिए। हाँ, तो क्या है? पढ़िए फिर से, क्या लिखा है? हाजा हक़्क़ुन, हाजा के बाद क्या आ रहा? हक़्क़ुन। ये नकीरा है, मारिफा है, क्या है बताइए मुझे। नकीरा तो यहां तक जुमला इसमें बन रहा है, ये है सच, ये है हक। तो आपको जो है मुब्तदा मिल गया, आपको खबर मिल गई। अब पीछे का क्या है देखिए, मुरक्कबे जारी है, तो इन्हें क्या बनेगा अभी? मुताबिक सर। हाँ, अब देखो कितना प्यारा बोले आपने, पहली मर्तबा सही बोली। मैं जब से पूछ रहा हूँ ये कौन है, तो मामू को बोलती है चच्ची है, चच्ची को बताए तो बोले नाना है। नाना, चच्ची कब से दाढ़ी रख के फिर रही? हाँ बोलो, ये है हा। मिन इंदी का मतलब, मिन का मतलब क्या है बेटे? बोलो, मिन का मतलब से, इन का मतलब हाँ पास, तुम्हारे पास, तेरे पास, तेरे पास का हक है, ये है हक तेरे पास का। ठीक है, अब इसको तखसीस बनाना है, तो हाजा जो है, हाजा की जगह पे हमें मुताबिकत पे एक रफा हालत में ज़मीर लाना है, तो हुआ लाए हमने हाजा हुवल हक। खाली हक था, हमारी खबर हक़ुन था, तो उसको मारिफा करें। हाजा हुवल हक मिन इंदिका, ये इसका मतलब है, ये है, यही है हक तेरे पास का। हाँ, जरा माइक बंद करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा, खर 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 कर। चलिए आप जरा पढ़िए भाई। ज़ालिका फौजुन अज़ीमुन, आराम से पढ़ो। ज़ालिका फौजुन अज़ीमुन। तो ज़ालिका क्या है बताओ मुझे? इसका भी इशारा
इशारा इसमें बाई बईद का है और मबनी है, मारिफा है, तो ये मुब्तदा बनता है। और खबर क्या है बेटे, बताओ मेरे को। फौजुल अजीम हाँ, फौजुल अजीम। अल्लाह की सिफतें जब आती है दो, तो वो मुसरफ सिफत नहीं होती, इसके अंदर इसमें कोई भी नहीं है, दो सिफात है। ये है फौज का मतलब, फौजुन का मतलब क्या है भाई? कामयाबी कामयाबी, इनाम। अजीम का मतलब क्या है? बड़ी कामयाबी। ये है, हाँ, फौजुन अजीम, कामयाबी और बड़ी। चलिए अब इसको तखसीस करना है, तो वही बड़ी जालिका को रखे जालिका, उसके जगह पे हुआ लाए, और फौजुन को अल फौजु करे, अजीमुन को अल अजीम करो। यही है बड़ी कामयाबी। हाँ, अच्छा, अभी जो नीचे की लाइन है, कोई पढ़ के बताइए, मैं तुम्हारी तारीफ भी करूंगा, तुम्हारे लिए इनाम भी बोलूंगा। पढ़ो ना, फिर बोलो, मायने बोलो। इन्न रब्बक हुवल कवियुल अजीज। पढ़ो नहीं बोला मैंने, मायने बोलो बोला। रब्बुका तेरा रब कवियुन हाँ, अजीज, बहुत आपका देखो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, पहले ये बताओ कि इसमें मुब्तदा कौन है? तो इसमें एक टुकड़ा मुब्तदा का, एक टुकड़ा कौन है बताइए? दो टुकड़े हैं वहां पे, मेरे ख्याल से मुरक्कब दिख रहा मेरे को, तो उसमें मुब्तदा कौन है? मुरक्कब इज़ाफ़ी से रब्बु का हाँ, तो रब्बू है यहाँ पे, मुब्तदा क्या है? का उसके साथ में ज़मीर मुत्तसिल लगी हुई है। तेरा रब, तेरा रब, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रब की बात हो रही है, रब की बात हो रही है। उसका एडिशन, एक्सटेंशन क्या है? तेरा। हमेशा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में मुज़ाफ की तरफ ध्यान रखना, वो रहता हमारा लीडर। रब, तेरा, तो तेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, रब के ऊपर इंपॉर्टेंट है, और रब के ऊपर पेश है, इसलिए ये क्या बन गया? मुदाफ बना। मुदाफ मारिफा होना, ये तो मारिफा नहीं दिख रहा मेरे को। आप बोले ना मुब्तदा है, ये मारिफा है क्या? रब मारफा है सर। नहीं नहीं, अखफ रब की मारिफा आवाज आकफ की आवा है, लेकिन आकफ की आवा है तो मारिफा है क्या? मारिफा है। कैसा है, कौन बोले तुमको? अच्छा, रब्बु जो है ना मुदाफ है, मुदाफ इलैहि क्या है? मुत्तसिल जमीर है, और जमीर हमेशा मारिफा होती है। अब जमीर मारिफा है, उनका कॉम्बिनेशन मिलके मारिफा बन गया, समझे ना? कभी भी मुदाफ इलैहि की तरफ देखेंगे, मुदाफ इलैहि अगर मारिफा है तो मुदाफ मारिफा ऑटोमेटिक होता है। ऐसी बातें बताए तो झट बोल के लिख लेना। तो रब का मुदाफ है, मुब्तदा है, ठीक है। अच्छा, खबर क्या है बेटे, बताओ मेरे को। कवियुल अजीज। अच्छा, कवि के मायने मालूम है क्या आपको? कवि के मायने मालूम है क्या आपको? ताकतवर ताकतवर, अजीज जबरदस्त। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। अब जरा मेरा दिल खुश हो गया, कितना अच्छा बोले आपने। तो ये दो सिफतें हैं, इसमें मौसूफ नहीं है, दो सिफतें हैं। तुम्हारा रब ताकतवर और जबरदस्त है। क्या बोलेंगे? तुम्हारा रब ताकतवर जबरदस्त है, तुम्हारा रब है ताकतवर जबरदस्त। अब इसके अंदर हमें इस तरह का मफहूम पैदा करना है कि तुम्हारा रब ही ताकतवर और जबरदस्त है, तो इसलिए हमारी कार्रवाई करेंगे, रब्बुका के साथ लगाएंगे इन्ना,
अच्छा सब देख रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा है? इन्ना लगाने से क्या तब्दीली हुई जरा बताओ मेरे को। इन्ना का इसम रब्बा हालत का नसब होगा। में कर नसब हो गया। हाँ तो तब्दील कौन हुआ? रब्बू, रब्बू का रब्बा हो गया। रब्बू का क्या बन गया? रब्बा। मैंने अभी बोला ना, ये कॉम्बिनेशन में हमेशा मुजाफ की तरफ नजर रखा। बेशक तेरा रब ही ताकत, अब यहाँ पे अल लगाए तो क्या कहेंगे हम? जो तेरा रब ही जो ताकतवर, जो जबरदस्त है, ऐसे बोलेगा ये जुमला। क्या बोले? जरा गाढ़ा दिख रहा नहीं। कमाल के लोग। चलिए आगे पढ़िए। जालिका, जलाल, बैदुन, मानने कोई बोल सकते तो बता सकते तो बताओ। ज़ालिका जल, हुवा ज़लालुल बईद। गुमराही मैंने ये बोला वो दू- मायने बताओ। वो दूर के गुमराही में है। वो है गुमराह दूरी के, ठीक है, वो है गुमराह दूरी के, और वही है दूरी के गुमराह बताना है। तो जालिका का हुआ बनाए हमने, जालिका हुवा ज़लालुल बैद। आप समझे कैसा बनाए? जालिका की जगह क्या लाए? हुआ लाए। इसी को बोलते हैं जमीर। कौन सी जमीर बोलते हैं इसको? ज़मीर मुनफसिल। मुफस्सिल तो है, लेकिन ये ग्रामर में क्या बोलेंगे इसको? जमीर फसल बोलो। जमीर फसल, फसल ज़मीर यानी दोनों के दरमियान फासला कर देती। किस किस की फासला कर रही? मुब्तदा और खबर को हटा देनी, इधर इधर हटा रही, दूर कर रही, दोनों के बीच में बैठकर दोनों को दूर कर रही, फासले पे ला रही है, और खुद भी मुनफसिल है। तो कैसा पढ़ेंगे? ज़ालिका हुवा ज़लालुल बैद। ये पूरे कुरान के, यहाँ कुरान में आए हुए हैं। ज़ालिका बोलता हूँ वही है दूरी के गुमराह। हाँ चलिए आगे पढ़ो। अजाबी, अजाबुन, अलीमुन। चलिए आप पढ़ के मायना पहले बताइए, तो इसका मुब्तदा बताइए मुझे। मुब्तदा क्या है बच्चों बताओ? अन्ना ना करना, उधर पढ़ो जी पहले, मायने बोलो। अजाबी, अजाबी मुब्तदा है क्या? जी सर। जी सर है सर। क्या उसको मुब्तदा कौन है? अज़ाबी पढ़ के सुनो। अजाबी है, तो अजाबी का मतलब क्या है? मेरा मेरा अज़ाब। मेरा अज़ाब। अच्छा, तो इसके अंदर इसम कौन सा है? अज़ाब अच्छा, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है? ज़मीर है। या कौन सी ज़मीर ज़मीर है? कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल है, और या मुतकल्लिम है? मुतकल्लिम, बोलो। मुतकल्लिम। मुतकल्लिम या है, और ज़मीर मुत्तसिल या अज़ाब जो है मारिफा है कि नकीरा है? अज़ाब अख़फ़िया व मारफा। आखफ किया हुआ, मारिफा कह रहा था, आखफ किया हुआ है, मारिफा नहीं, आखफ किया हुआ है। अब मारिफा है कि नहीं कैसा डिसाइड करेंगे आप देखो कि वो लगी हुई जमीर कौन सी है, चिपकी हुई, वो जमीर मुत्तसिल है, और तमाम ज़मायर मारिफा होते हैं, और वो जो है अजान को मारिफा बना रहे हैं कि तो मारिफा के साथ जब अटैच होके आएंगे तो मारिफा बन जाएगा, इसलिए मुब्तदा है मेरा अजाब। अच्छा आगे पढ़िए, का खबर पढ़िए भाई, कौन है कोई पढ़िए। वल अज़ाबुल अलीम। हाँ पढ़ो पढ़ो, अच्छा पढ़ो पढ़ो। अजाबुल, अलीम। तो ये कौन सा कोई मुरक्कब बन रहा है क्या? जी ये मुरक्कब बन रहा है, अज़ाबुन अलीम। तौसीफी। अच्छा, तो इसमें टाइप को बनाओ ना, मुरक्कब क्यों बना भाई?
क्योंकि दोनों सेम एग्जामुन भी है दोनों सेम अपन शादी का रिश्ता लगाने नहीं जा रहे, अपन शादी का रिश्ता लगाने जा रहे हैं क्या? नहीं। तो आप बोलेंगे चार पैमाने जो इस्म के होते हैं, वुसाअत, ऐराब, वाहिद और जमा और जिन्स, ये चारों एतबार से मुताबिकत में होने से ये बन रहा है मौसूफ सिफत। तो क्या मायने, जरा इबारत को उर्दू में पढ़िए, आराम से पढ़िए। मेरा अजाब, यहाँ तक हो गया ना, आगे पढ़िए। अलीमुन दर्दनाक अजाब। हाँ, मेरा अजाब के बाद में, मेरा अजाब हाँ, बड़ा जो बड़ा दर्दनाक है। मेरी बच्ची, हमने हमेशा से मुदाफ जो भी मुब्तदा था उसके बाद है डालना। मेरा अजाब है दर्दनाक अजाब। ये पढ़ने का तरीका है, जिद करे तो फिर वो मायने निकलते नहीं बराबर। मेरा अजाब है दर्दनाक अजाब। अब इन्ना लगाकर उसमें तखसीस पैदा करो। बेशक मेरा अजाब है दर्दनाक अजाब। हाँ, मेरा अजाब ही है दर्दनाक, जो दर्दनाक अजाब। चलिए आगे की लाइन पढ़ेंगे कोई। रब्बुका खल्लाकुन अलीमुन। रब्बका हाँ, खल्लाकुन अलीम। अच्छा, ये रब्बु का होना चाहिए, उससे पहले कोई तो भी हर्फ आया था तब्दील करने वाला, इससे रब्बा का दिख रहा। माफी चाहता हूँ, रब्बु का होना चाहिए, बाद में रब्बा का बनेगा इन्ना के साथ में। बनाइए, रब्बु का खल्लाकुल अलीम। अब बोलिए मुब्तदा कौन है? रब्बु हाँ, अकब किया हुआ है, और का के वजह से उन्हें, का के वजह से मारिफा बन गया वो, और मुब्तदा बन गया, क्योंकि उन्हें मारिफा है। और रफा रब्बू, जो रब्बू है वो हमारा मुब्तदा है। हाँ, का उसके साथ अटैच्ड है, तो रब्बू नहीं आया तो मुब्तदा बन ही नहीं सकता उन्हें। बिल्कुल वो गलत लिखा हूं मैंने, एक जबर आ गया गलती से। तो रब्बु का खल्लाकुन अलीमुन, तो रब्बु का के बाद में क्या लगाएंगे भाई? है, तेरा रब है। खल्लाकुन यानी पैदा करने वाला, इल्म वाला। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे फिर सिफत मौसूफ नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों भी जो है सिफात है। इन्ना लगाइए, इन्ना रब्बा का। अब रब्बा इसमें बना के अब इन्ना आ गया है तो बना रब्बु का रब्बा का। तो देखो मुब्तदा पहले रब्बा था, अब रब्बु था, अब इसमो इन्ना बन गया रब्बा का। उसके बाद खबर में हमने हुआ लाए और दोनों सिफात को अल लगा दिए। ठीक है, इस तरह से हम तब्दील करेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, हाफिज साहब को देता हूँ। तो मैंने, अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आपके कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, जरा ये भी देख लेते हैं हम लोग, जरा अहम अहम काम है ये। चलो एक दो तीन देख लेते हैं ये। पढ़िए, फाउलाइका खासिरून। तो उलाइका किसके लिए आती भाई? जमा के लिए, वईद के लिए, तो हम लगा दिए। उलाइका हुमुल खासिरून, इस तरह बनेगा, समझे ना? अच्छा, हाँ, तो पढ़िए, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ रहे पढ़ो। अल काफिरूना जालिमूना, इसको बनाओ। अल काफिरूना जमा मुज़क्कर लाओ, हुमुल जालिमूना। ठीक है, इस तरह से आपको बेहतर हो जाएगा, पढ़ने में आसानी होगी। वक्त के किल्लत की वजह से मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, अगर चाहे तो आप फोटोज ले सकते हैं इसके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है? क्योंकि हमने नहू, इल्म नहू का 90% पढ़ लिए हमने 2 महीने में। तो आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी अगर मुश्किल पेश आ रही है तो अभी मैं 5 मिनट रुकता हूँ, आपके सवालात को लेता हूँ और कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपको बेहतरीन समझाऊं। सर ये कल से फिर रिपीट करेंगे?
कौन सा कंसेप्ट? ये नहीं रिपीट नहीं, ये स्लाइड्स जो आगे की बची है ये कल करेंगे। नहीं, कल कल तो हफ्ता है, परसों इतवार है, और वो अब हमारा जुमले फेलियर शुरू होता है। आप ये लिख के लीजिए, आपका होमवर्क है, लिखो और मेरे को बना के ला के समझा के बताओ। आप भी तो जरा कोई कोशिश करो, ले उसका फोटो लो। सर आपने कहा था एक दिन क्लास आप एक्स्ट्रा लेंगे। जी सर। तो आज का एक्स्ट्रा क्लास है ना? नहीं, फ्राइडे को तो आप हमेशा लेते हैं। अच्छा, और अब चाहिए आपको? आप बोलिए कौन सा दिन चाहिए, मैं ले लेता हूँ। सर आपके पास 2 दिन बचते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो। अच्छा, तो क्या आपको इतवार के दिन होगा क्लास? जी ले सकते हैं हम, मैं तो ले सकती हूँ और अपने सिस्टर बता दें। तो आप सबसे दरियाफ्त कीजिए, और मैं अभी यहाँ पे 10:30 तक, 11:15 तक हूँ। आप सब लोग दरियाफ्त कीजिए, और लेकिन खाली मेरे को क्लास लेकर आप जो है गाना सुने जैसा, दुनिया का गीत माला सुने जैसा सुनो मत। पहले आप जो है, आपकी जो भी डिफिकल्टी है, या आपको कोई चीज समझी नहीं है, वो बना के लाइए, तो मैं ले लेता हूँ। या फिर आपने बोले नहीं सर हमको खाली रिवीजन ले लो पूरा के पूरा, वो भी ले सकता हूँ इंशाल्लाह। कैसा नहीं करना सर, बोलो? आप रिवीजन ही करा दीजिए और जो जो आएंगे वो लोग हैंड रेस कर लें, अभी पता चल जाएगा। तो जरा देखिए, जब मैं मेरा वक्त पूरा की पूरा लगा रहा हूँ, मेरे फैमिली के साथ मुझे लगाना है, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाने में लगा रहता हूँ। मेरे बाल बच्चों को भी थोड़ा वक्त देना पड़ता है, लेकिन मैं वो सैक्रिफाइस कुर्बान करके आपके साथ आ रहा हूँ। तो आप ज्यादा तादाद में रहिए, ताकि मुझे भी अब पढ़ाने का शौक पैदा हो। ठीक है, आप सबसे बात कीजिए और मुझे बोलिए, मैं करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों की भी तैयारी होना कैसा। आप लोगों ने शौक बताए, तो मुझे 2 घंटे का, मैं कंटिन्यू 2 घंटे का रिवीजन लेता हूँ। 2 घंटे एक साथ, पहले पहले लेसन से लेकर आखिरी लेसन तक हर चीज का आपको मैं रिवीजन दूंगा इंशाअल्लाह। 2 घंटे भी, 3 घंटे भी देने को तैयार हो, ताकि आप सैर हो जाए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और आप इसके अच्छे आलिम बन जाए। मैं तैयार हूँ। हाफिज साहब को मैं को जोड़ने दूंगा, क्योंकि हाफिज साहब के पास भी बहुत काम रहता। अब आगे उनसे आप दरियाफ्त करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संडे के दिन सर ने जैसा अभी ऐलान किए, आपने भी बताया कि संडे के दिन एक रिवीजन क्लास हो। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो वो क्लास रिवीजन वाली अटेंड करना चाहते हैं? सभी चाहे तो आते हैं। 2 लोग हैं, राइज हैंड करिए तो समझ में आ जाएगा। मैं भी कर लूंगी सर। जी, नीचे जो ऑप्शन आ रहे मीटिंग के, उसके अंदर से एक रिएक्शन एक ऑप्शन है, वहां पे आपको राइज हैंड, वहां उस पर क्लिक कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा कितने लोग। कहाँ
पानी देते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। जी पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट, और कोई पढ़ने वाले है? रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु आप लोग हैं। वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी और कोई है पढ़ने वाले? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी और कोई है पढ़ने वाले? ला ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी माशाल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द आगे का वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अला चलिए शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी माशाल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाल्लाह। ला तो ये इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए पढ़िए। वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अभी तक का हमारा जो सबक हुआ शुरुआत की क्लास से लेकर अभी तक हमने पढ़े इस्म के ताल्लुक से और हुरूफ की कुछ मालूमात लिए और उसके बाद हमने पढ़े मुरक्कबात। मुरक्कबात में हमने 4 मुरक्कबात पढ़े, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब जारी। ये 4 मुरक्कबात है और मुरक्कबात को मिलाकर
آنا یہ ہے نہیں. جملہ دیکھے ہم نے، جملہ بنانا سیکھے، جملے کو پہچاننا سیکھے. اور جملے جیسا کہ دو قسم کے ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور دوسرا جملہ اسمیہ. تو ہم نے پڑھے ابھی تک کے جملہ اسمیہ کے بارے میں. جملہ اسمیہ کے بارے میں کوئی مجھے بتائیے کہ کیا جملہ اسمیہ سب سے پہلے کس کو بولیں گے؟ سر ہم بول رہے ہیں سر، ہاں بولیے. جو جملہ اسی سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جس کے جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ماشاء اس میں اللہ. دو حصے ہوتے ہیں اس کے، ایک مبتدا ہاں، اور ایک خبر. جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر. اور دوسرا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. خبر جی نکرہ، ماشاء خبر اللہ. مرفوع اور نکرہ ہوتی ہے. جی. اور تیسرا اس کے اندر جو مزید اضافہ ہوتا ہے، جو مزید معلومات دیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ متعلق خبر، جو ہمیشہ جری حالت میں رہتا ہے. متعلق خبر یا پھر متعلق بالخبر. اور متعلق خبر ہمیشہ مرکب جاری ہوتا ہے. جاری ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر استعمال ہونے والے نام، اس کے اصول. جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے کتنے نام استعمال کیے؟ مطلب ایسا کہ جملہ اسمیہ جیسا یہ ہے کہ مبتدا، دوسرا ہے خبر، تیسرا ہے متعلق خبر. اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے استعمال کیے، جو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. قائم مقام خبر. قائم مقام خبر. قائم مقام خبر پوچھے نا، متعلق خبر میں آ رہا ہوں. ہاں، اس کا نام قائم مقام خبر. مقدم بھی تھا اس اور اس کے علاوہ قائم مقام خبر مقدم. قائم مقام خبر مقدم. مبتدا مؤخر خبر مقدم. جملہ مبتدا مؤخر قائم مقام خبر مقدم مبتدا مؤخر. اور جملہ خبر مقدم. خبر مقدم ہو گئی نا پہلے. اچھا خبر مبتدا مؤخر. مؤخر. مبتدا خبر متعلق خبر، مبتدا قائم مقام خبر، قائم مقام خبر مقدم، مبتدا مؤخر. خبر مقدم، مبتدا مؤخر، یہ نام ہے جو ہم نے ابھی تک کے جملہ اسمیہ کے اندر استعمال کرے. یہ نام یاد ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ جی. سب سے پہلے جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہے، مبتدا اور خبر. اگر جملہ اسمیہ ایک لفظی ہے، سنگل ورڈ ہے، تو مبتدا معرفہ اور خبر نکیرہ. اور اگر جب مرکبات کا استعمال ہو جائے تو مرکبات ہمارے پاس چار ہے. مرکب اشاری صرف مبتدا بن سکتا، خبر کبھی نہیں بن سکتا. مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتا، خبر بھی بن سکتا. مرکب توصیفی مبتدا بھی بن سکتا، خبر بھی بن سکتا. مرکب جاری نہ مبتدا بنتا اور نہ ہی خبر بنتا، اور وہ ہمیشہ متعلق خبر بنتا. پہلا ہو گیا. اب دوسرا ہے مبتدا ہے جملے کے اندر، اور اگر خبر حذف ہے، خبر موجود نہیں ہے، تو متعلق خبر یعنی کہ مرکب جاری قائم مقام خبر بن جاتا. اور وہی جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے مرکب جاری یعنی کہ قائم مقام خبر مقدم آ جاتا اور مبتدا مؤخر ہو جاتا. اور ایسے بھی کئی جملے آتے جس کے اندر
خبر مقدم آ جاتی اور مبتدا مؤخر آ جاتا، یعنی کہ خبر پہلے آ جاتی، مبتدا بعد میں آ جاتا۔ یہ اتنے ہارڈ نام اگر یاد نہیں بھی ہے تو مبتدا خبر متعلق خبر یہ یاد رکھنا ہے۔ قائم مقام خبر یعنی کہ خبر کی جگہ استعمال ہونے والا، مرکب جاری، یہ بھی یاد رکھے تو چلتا۔ خبر مقدم یعنی کہ خبر پہلے آ گئی، یہ یاد رکھو۔ مبتدا بعد میں آ گیا، یہ یاد رکھو۔ مقدم اور مؤخر یاد نہیں بھی رکھے تو چلتا۔ اور اس کے علاوہ ایک نام استعمال ہوا تھا شبہ جملہ۔ شبہ جملہ کا یہ نام ایسا ہے جس کو آپ یاد نہیں بھی رکھیں گے تو کافی ہے، چلنے والا ہے، ہمارا کام چل جاتا۔ تو یہ وہ نام ہے جو جملہ اسمیہ کے اندر ابھی تک کے استعمال ہوئے۔ اس کے علاوہ اور ایک نام ہے جو استعمال ہوا اثر پیدا کرنے کے لیے۔ انا کا اسم اسمو انا، نا قبر انا خبر انا خبر انا، یا پھر بولیں گے انا کا اسم اور انا کی خبر خبر۔ اور ایک دو نام ایڈ کر لیجئے، آپ اس میں لکھ لیجئے۔ لا نفی انش لا نفی جنس کا اسم، لا نسی کا لا اسم نفی جنس کی خبر خبر۔ اور اگر آپ کو میں بولوں اور ایک تو آپ صرف اس کو لکھ کے رکھنا ہے۔ ماں کا خبر، ماں کی نہیں، ماں کی باپ کی کس کی بھی نہیں، نہیں، نہیں۔ ماں کا اسم، ماں کی نام کانا کا اسم، کانا کی خبر۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا پھر آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ یہ وہ نام ہے جو جملہ اسمیہ کے اندر استعمال ہوتے، بس۔ سر اسکرین کو نیچے کر دیجیے تو شروع سے لے لینا اس کا۔ جی سر لے لیا۔ زیدن جالسن، کیا یہ جملہ ہے؟ جی سر، ہاں جی سر، سر، جی تحت الشجرتی، اس میں مبتدا کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، خبر جالسن ہے، اور یہ کیا ہے تحت الشجرتی؟ متعلق خبر، مرکب جاری ہے، متعلق ہے، خبر آ گیا۔ اس کے بعد اور جملے کی ترتیب، جملہ اور کون سے قسم کا بنتا؟ یہ ایک جملہ بنائے تھے، اس کے بعد سوالیہ جملہ بنائے تھے۔ ابھی سوال پوچھنا ہے، کیا زید بیٹھا ہوا ہے درخت کے نیچے؟ اور حل جالسون تحت حل زیدن یا حل زیدن جالسن تحت الشجرة تحت الشجرتی۔ اس کو نفی بنانا ہے، لا 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 زيد جالسن تحت الشجرة لا زیدن جالسن تحت الشجرة تحت الشجرتی۔ اس کو اور نیگیٹو بنانا ہے، اور ایک طریقہ، ماں سے ماں لا ما زیدن جالسون بی جالسن، سن
माँ के साथ बाज अरबी का इस्तेमाल कुरान में हुआ, जी अच्छा तहता शजरती। अब इसके बाद है जुमले के अंदर ताकीद पैदा करना। हमको बनाना है बेशक जैद बैठा हुआ है दरख्त के नीचे, क्या बनाएंगे? इन्ना लग इन्ना इन्ना ज़ैदन जैदन। अब जैदुन से हो गया जैदन। जालिसुन तहता शजरती। बेशक जैद बैठा हुआ है दरख्त के नीचे। अच्छा सर, यही जुमले को थोड़ा सा ताकीद बढ़ाना है, डबल बूस्टर करना है। सर एक मिनट, एक बात पूछिए। हम इसको हम नसब में नहीं लेंगे, हम सिर्फ जैद को ही लेंगे, मुब्तदा को ही लेंगे, खबर को नहीं लेंगे नसब में। खबर को नसब में नहीं लेंगे, सिर्फ इन्ना मुब्तदा। इन्ना जो है अपने मुब्तदा को नसब देता। इसके साथ लगेगा लाम जबर ला। इन्ना जैदन लजालिसुन। बेशक जैद बैठा हुआ है दरख्त के नीचे। अब और ज्यादा ताकीद पैदा करना है जुमले में। ताकीद पैदा करने का दूसरा तरीका जो आज हमने पढ़े, चलिए ऐसा बोलेंगे उसको, जुमले में हसर का मफहूम पैदा करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बीच में जमीर आ जाएगी और हाँ, जैदुन। खबर खास हो जाएगी मुब्तदा के साथ। हाँ, हुवल जालिसु। मारिफा बन जाएगी खबर। मारिफा बन जाएगी। जैदुन हुवल जालिसु जालिसुन तहता शजरती। जैद ही बैठा हुआ है दरख्त के नीचे। आ गया? सादा जुमला हो गया, सवालिया जुमला हो गया, इनकारिया जुमला हो गया। इनकारिया जुमला ताकीद के साथ हो गया। और जुमले के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए बेशक जैद बैठा हुआ है दरख्त के नीचे, इन्ना लगा दिए। और उसके बाद है जैदुन हुवल जालिसु। जैद ही बैठा हुआ है दरख्त के नीचे। इस तरह से खबर भी मारिफा हो जाती है। हुआ है तो मारिफा हो रही। हाँ, हुआ है खबर मारिफा हो जाती है। खास होगी फिर। जी सर माँ जैदुन भी जालिसुन का ट्रांसलेशन कीजिए प्लीज। जैद नहीं है बैठा हुआ। सर मार माँ और ला हाँ, दोनों जुमला दोनों जुमला नफी है। आप ला के साथ बोलो या फिर माँ के साथ बोलो, दोनों पलंग यहाँ डाल देना इस। माँ के दोनों साथ सेम है। अच्छा भी लगता ना सर। एक मिनट, मेरे को हेडफोन दूसरा भी लगाने दो। दो तीन तीन लोग बात कर रहे तो एक कान से सुने नहीं आ रहा। नहीं डिस्टर्ब हो रहे, माइक म्यूट नहीं कर रहे। जी हाँ, आप बोलिए, आप दो साइड से सुने आता आप। ला ला करना तुमने, तुम्हारा काम है। एक करके पूछिए प्लीज म्यूट। पूछेगा तो समझ में बाकी लोग जो घर की बात कर रहे हैं प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। जी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ला के साथ खाली जुमला जैसे कैसा रहता है, माँ के साथ भी लगा था। हाँ, माँ के साथ भी लग जाता। और उसको वो भी लगा के इस वजह से बताया कि कुरान में उस तरीके से इस्तेमाल हुआ। और खबर सेम ही रहता है। हो जाती, खबर मजरूर हो जाती। हाँ, खबर मजरूर हो जाती, हालत जर में चले जाती। जी ठीक है जी। तो ये हो गया मा जैदुन भी सालिहिन, जैद नहीं है बैठा हुआ। इन्ना जैदन लजालिसुन, बेशक यकीनन जैद है बैठा हुआ। जैदुन हुवल जालिसु, जैद ही बैठा हुआ है। आ गया? अब इसके अलावा एक और हर्फ जो हम पढ़ रहे थे,
کئی مرتبہ کوئی آیت کے اندر وہ ایک حرف آیا تھا جس کا نام ہے لا نفی جنس. کیا نام ہے؟ ہاں، لا نفی جنس. لا نفی جنس جملہ اسمیہ پہ لگتا اور وہ عمل کیا کرتا؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو اخف کر دیتا اور حالت نصب میں لے کے چلے جاتا. ٹھیک ہے. اب یہی نیگیٹو انکاریہ جملے کو بہت زیادہ تاکید پیدا کرنا ہے، زید کے لیے خاص کر دینا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ آپ لکھ لیجئے. لا جالسہ، جالسن تھا، الجالس، لا نفی جنس آیا جالسہ، لا جالسہ. اور اس کے ساتھ لا نفی جنس کے ساتھ جب بہت خاص کرنا ہے، مختص کرنا ہے کسی کے لیے، تو اس کے ساتھ ایک حرف لگتا، حرف استثناء. الا، الا زید تحت الشجرۃ. لا جالس الا زید تحت الشجرۃ، یعنی کہ کوئی نہیں ہے بیٹھا ہوا سوائے زید کے درخت کے نیچے، یعنی کہ اکیلا واحد زید ہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے درخت کے نیچے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے والا ہے. تو وہ جملہ کیسا؟ آ جائے گا سر. الا کا مطلب سوائے. لا جالسہ الا زید تحت الشجرۃ، معنی کیا ہو رہے؟ کوئی نہیں ہے بیٹھا ہوا سوائے زید، سوائے زید کے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہو رہا کہ صرف اور صرف زید بیٹھا ہوا ہے، باقی کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے درخت کے نیچے. جملہ بدل جا رہا نا سر، پورا اسٹرکچر بدل گیا آپ کا جملہ. اسٹرکچر بدل جا رہا، وہ تو سمجھنا پڑتا. تو کیا بن رہا ہے؟ لا جالسہ الا زید. یہ ہے جملے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لو، یا پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو اسکرین شاٹ لینے کی. ہم واپس چلیں گے جو شروع میں ہم پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ جملے کی ہم یہی ہے، نہیں کوئی سوا اجرا کریں گے. لا الہ الا اللہ، معنی بولیے. نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ معبود عبادت کرنے کے لائق صرف اللہ ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی کوئی شریک نہیں ہے وہ اس کا. اب یہ یہاں پہ دو مرتبہ لا نفی جنس کا استعمال ہوا، پہلے یہاں پہ لا نفی جنس استعمال ہوا لا شریک لا الہ میں، اور دوسرا لا شریکہ میں. اب یہاں پہ جو لا استعمال ہوا اس کے ساتھ میں الا استعمال ہوا، کیونکہ اللہ تعالی کے نام کو ظاہر کرنا تھا کہ وہی ہے عبادت کے لائق، باقی کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو لا نفی جنس استعمال ہوا اس کے ساتھ الا کا استعمال نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے اس کے. یہ ہو گیا لا نفی جنس. اب ہم آگے چلیں گے، لہ الملک ولہ الحمد. اب یہ جو لہ الملک ہے اس کے بارے میں بتائیے مجھے، کون بتائیں گے؟ کون سا جملہ ہے؟ جملے کی ترتیب کیا ہے؟ لہ الملک مبتدا اپنے کیا پیچھے ہوگا، ہاں، مبتدا بعد میں آ گیا، خبر پہلے آ گئی. خبر ٹھیک ہے. اچھا، خبر ہے تو کون سی خبر ہے؟ مجرور ہے، مقدم قائم مقام خبر مقدم. قائم مقام خبر مقدم، کیونکہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ مرکب جاری آ گیا. الملک لہو، بادشاہت ہے اس کی، اور اس کو پہلے لا لیے، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے. یہ ہے بات. واو حرف عطف ہے. اب یہ ہے لہ الحمد، یہ بھی اسی مرکب جاری قائم مقام خبر مقدم، یعنی کہ پہلے آ گئی. پہلے آ اور مبتدا
ये मौखर होगा मुअख्खर हो गया, यानी कि मुब्तदा बाद में आ गया। अब ये जुमले में ताकीद पैदा हो गई, उसी के लिए है तमाम तारीफें। जी वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वाव हर्फ अत्फ है, उसके बाद हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये कौन सा जुमला है? इसमें हुआ जुमला इसमिया है। मुब्तदा खबर क्या है? हुआ मुब्तदा है मुब्तदा सर हुआ है हुआ मुब्तदा है सर। और हुआ कदीर मुब्तदा है, ना कुल्ली जो है खबर कदीरुन है। जरी अला हालत में कुल्ली अला की शैइन वजह से मुतालिक चला खबर कुल्ली है। शैइन कदीर है ना। और खदीर जो है खबर है, खदीर खबर है। कदीरुन खबर है, हाँ, अला कुल्ली मुतालिक खबर मुरकब जारी मुतालिक खबर है, क्योंकि ये मुरक्कब जारी बन के आया। तो ये हुआ हो गया मुब्तदा, ये मुतालिक कबर, और ये खबर। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो है हर चीज पर, हर शय पर कुदरत रखने वाला, कादिर। तो इसके अंदर दो चीजें आ गए, पहला है कायम मुकाम खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर। यहाँ पे भी कायम मुकाम खबर मुकद्दम, मुब्तदा मुअख्खर। यहाँ पे है मुब्तदा खबर मुताल्लिक़ खबर। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं? सर ये लहू ला के बाद समझ में नहीं आया मेरे। ला के बाद, ठीक है। और लहुल ये वाला ला के बाद ना, ला नफी जिन्स के बाद वाला, जी जी ठीक है। और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लहुल मुल्क लहुल हम्द, ये दोनों जगह ये लो, बजाय खबर मुकद्दम, कायम मुकाम खबर। हाँ, लहुल मुल्क, ये जुमला अलग है, यहां से वाव आ गया। बादशाहत उसी के लिए है, उसी के लिए है बादशाहत। ये होना चाहिए था अल मुल्क लहू, बादशाहत है उसके लिए, या फिर बादशाहत है उसकी। लेकिन कायम मुकाम खबर, उसको पहले ला लिया, खबर हज़फ है यहाँ पे, उसको पहले ला लिए, तो जुमले में ताकीद पैदा होगी। लहुल मुल्क, उसी के लिए है बादशाहत, या फिर उसी की है बादशाहत। सेम वहां पे भी यही है, लहुल हम्दु, अलहम्दु लहू और लहुल हम्दु। कायम मुकाम खबर को पहले ला लिए, और मुब्तदा मुअख्खर हो गया, जुमले में ताकीद पैदा हो गई। उसी की है तमाम तारीफें। हाँ, सर ऊपर के जुमले में ला हाँ नफी जिन्स के बाद हाँ, इल्ला जो आया, तो इधर क्यों नहीं आया इल्ला दूसरे तरफ? अच्छा, कौन सा? इधर यहाँ पे इल्ला आया ना, इधर शायद हाँ, ला ये भी तो वो है ना, देखो, ला नफी। हाँ अगर यहाँ पे इल्ला आता, हाँ ला शरीका, ला शरीका के मायने क्या है? कोई शरीक नहीं है, ठीक है। अगर कोई शरीक होता, नौज बिल्ला, अगर कोई शरीक होता तो उसका नाम लाने के वास्ते वहां पे इल्ला का इस्तेमाल होता। अब कोई शरीक है ही नहीं उसके अलावा, इस वजह से इल्ला नहीं आया। और यहाँ फिर यहाँ कौन शरीक है सर? पहले अब यहाँ पे इल्ला आया, क्यों आया मैं बताता आपको। क्या है? देखो, असल में ये जुमला है अल्लाह, हाँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कोई शरीक पढ़ो, नहीं ये क्या है? पढ़ो, अल्लाह इलाहुन, इलाहुन, इलाह के मायने है माबूद, जिसकी इबादत की जाए, इलाह। तो अब ये जुमला है, देखो, ये एक लफ्जी जुमला है, शुरुआत इस्म से हो रही, इस्म आ गया, और ये मारिफा है, और ये इलाहुन नकीरा है, ये क्या हो गई? नकीरा।
खबर हो गई। ये मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा। मायने हो रहे अल्लाह है माबूद। बात समझ में आ गई? हमको भी मालूम है, सबको मालूम है, तमाम मोमिनीन मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह माबूद है। लेकिन इसके अंदर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ताकीद पैदा करना है, जोर देना है और हमको बताना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर हम बोलेंगे अल्लाह है माबूद तो फिर बाकी लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। हम ऐसा बोलेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो जब उनके कान अटैच हो जाते ये क्या हुआ? तो जुमले में हाँ, तो ये जुमले में बहुत ताकीद पैदा करना है और सिर्फ एक के लिए वो चीज मुख्तस कर देना है। तो अब ये ला नफी जिन्स जब लगता और इल्ला के साथ लगता तो ये जुमले की तरतीब कैसा बदल जाती थी। इलाहुन के मायने है माबूद और ला नफी जिन्स के बाद जो इस्म आता वो उसकी तासीर ये है कि वो पूरे के पूरे डिक्शनरी में जितने भी माबूद किस्म के लफ्ज है वो तमाम को डिलीट कर देता। मतलब कोई नहीं, कत्तान नहीं है। ये हमने ला लिए ला नफी जिन्स। अब ला नफी जिन्स अमल क्या करता अपने बाद आने वाले इसम को? नसब कर दिया, तो ये बन गया ला इलाहा। नहीं है कोई माबूद, मायने क्या हो रहे? नहीं है, माबूद नहीं है। माबूद नहीं है कोई। लेकिन कौन है माबूद इबादत के लायक? अल्लाह है। तो यहाँ पे आता है इस्तेमाल इल्ला। इल्ला अल्लाहु, सिवाय अल्लाह ये ला नफी जिन्स इल्ला के साथ अगर जुमला बनाना है तो खबर को लेके आना पड़ता पहले ला नफी जिन्स के साथ और मुब्तदा को लेके आना पड़ता इल्ला के बाद। ला इलाहा, नहीं है माबूद कोई, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, बाकी कोई भी नहीं है। ये भी एक है तरीका जुमले में ताकीद पैदा कर। जी सर, इल्ला को लगाने के लिए ये ऐसे मुब्तदा जो है बाद में आएगा और खबर पहले आ जाएगी, है ना? बीच में इल्ला को लगा देंगे, बीच में इल्ला लगा देंगे। जैसा हमने जैद के बारे में बताए थे कि जैद है बैठा हुआ दरख्त के नीचे, अब उसके लिए खास बताना है कि खाली जैद ही बैठे वाला है, बाकी कोई भी नहीं है। तो जालिसुन खबर थी, उसको ला लिए पहले, उसके साथ लगा दिए ला नफी जिन्स, ला जालिसा, नहीं है कोई बैठा हुआ, इल्ला जैदुन, सिवाय जैद के। सिवाय जैद के, जी कंफर्म हो गया जी। हाँ, तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। सर इसमें खबर और मुकद्दम क्या हो? खबर मुकद्दम नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना ये ला नफी जिन्स का इस्म हो गया और ये ला नफी जिन्स की खबर होगी। खैर उसको छोड़ दो, ज्यादा अहम नहीं है वो। तो ये थे हमारे पास के जो जुमले अभी तक के हमने पढ़े। जैदुन जालिसुन, जैदुन जालिसुन, ला जैदुन जालिसुन, मा जैदुन बिजालिसिन, इन्ना जैदन लजालिसुन तहत शजरती, जैदुन हुवल जालिसु तहत शजरती, ला जालिसा इल्ला जैदुन तहत शजरती। ये तमाम के तमाम जुमला इस्मिया है। और इसके अंदर किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछिए। जैसा कि सर ने आपको बताए थे कि जो भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, जी बोलिए। सर अभी बताया वह अला कुल्ली शाइन कदीर, ये क्या है? हाँ, ये जुमला इस्मिया है। और खबर जुमला इस्मिया है, इसकी शुरुआत हो रही हुआ से। वाव तो एडिशन है, ये कंजंक्शन है, हरफ आतफ है, जोड़ने वाला है। यहाँ पे हुआ से शुरुआत हो रही तो हुआ इस्म है, इस्म आया तो जुमला इस्मिया हो गया। और जुमला इस्मिया में दो अहम जुज है, मुब्तदा और खबर।
اگر ایک لفظی ہے تو مبتدا معرفہ ہونا اور خبر نکیرہ ہونا. اور تیسرا ایک ایڈیشن اس کے اندر آتا، ایک زائد آتا متعلق خبر. متعلق خبر ہمیشہ مرکب جاری کے ساتھ آتا، یعنی کہ حرف جر اس میں مجرور ہی ملے گا، وہ بن جاتا متعلق خبر. تو اس کے اندر دیکھیے ہوا ہے، علی کل شیئن ہے، علی آ گیا حرف جر، حرف جر آنے کی وجہ سے یہ کل شیئن ہر چیز، یہ تینوں مل کے ایک مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری جملہ اسمیہ کے اندر ہمیشہ متعلق خبر بنتا. اب یہاں پہ ڈھونڈنا ہے ہم کو خبر. خبر دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے قدیرن، قدیرن کے اوپر دو پیش نظر آ رہے، تو یہ اسم وسعت کے اعتبار سے نکیرہ ہے، اور نکیرہ آ گیا تو جملہ اسمیہ کے اندر یہ خبر بن جاتا. تو ہوا ہو گیا مبتدا، قدیرن ہو گئی خبر، علی کل شیء ہو گیا متعلق خبر. اگر ان کیس یہاں پہ قدیرن موجود نہیں ہوتا تو ہوا علی کل شیء صرف اتنا ہوتا، تو یہ مبتدا ہو جاتا، علی کل شیء قائم مقام خبر بن جاتا. یہ ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیے. ہے تو کلو شعین مرکب بنے گا. کلو شیئن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، علا کی وجہ سے یہ دونوں تینوں مل کے مرکب جاری بن گیا. تو آپ کیا پوچھے، پھر سے ایک بار پوچھیے. سر کلو شعین ہاں اگر اللہ نہیں ہے تو کلو شعین کوئی مرکب بنے گا. ہاں مرکب اضافی، اضافی کنسیڈر ہوگا. جی. تمام اللہ ہاں لگانے سے مرکب اس کو جاری کاٹ ہوتا ہی نہیں لگے گا نا سر، جیسے مضاف مضاف الیہ میں. نہیں اس کو نہیں لگتا. کلو جو ہے نا اصل میں ایک تمام جو ہم بولتے ہیں کلو خلاص، یہ جیسا ظرف کے طور پہ جو ظرف استعمال ہوتے ہیں نا، تحتا، اماما اور فوقا، یہ بھی الف لام اور تنوین اس کو نہیں لگتا، تو ویسے ہی قسم کا ہے ایک کلو. جی ٹھیک ہے جزاک. ٹھیک ہے تو چلیے لاسٹ میں. ہاں جی، خالی کلو شعین ہے تو وہ مرکب اضافی ہوگا، مرکب اضافی ہوتا. اور علا کل شعین بولے تو کیا ہوگا؟ تو ڈبے میں ڈبا ہے یہ مرکب اضافی پلس مرکب جاری. علا کلو لگانے آپ سے مرکب جاری ظرف بولے. ہاں علا لگانے سے مرکب جاری ہوگا. ہاں مرکب جاری ہوگا. وہ خیر چھوڑ دو، ابھی یہ اتنا یاد رکھو کہ یہ تینوں مل کے کون سا مرکب بنا، مرکب جاری. مرکب جاری ہے تو ہم کو جملے میں کیا ملا، متعلق ہے خبر. کس کے ساتھ کیا بول رہی ہے؟ آواز برابر نہیں آئی. کلو کس کے اچھا ایک منٹ میرے کو، آپ سب تمام لوگ ایک بات بتاؤ. آپ کلو سے پریشان ہے، بعد میں بتائیں گے. خالی پوچھ رہی ہے. تمام اسٹوڈنٹ سے یہ التجا کی جائے. اب میں نے بولا تمام اسٹوڈنٹ، تمام اسٹوڈنٹس کے مطلب کیا ہے؟ کیا ہے کلو طلاب، کلو طلاب کا مطلب کیا ہے؟ تمام اسٹوڈنٹس. تو عرب جو ہے کلو کا استعمال کرتے ہیں تمام کو ملا کے. کلو نفس ذائقۃ الموت، تمام ذائقہ ہے موت. کلو کا مطلب ہے ان ٹوٹالٹی. انگلش میں بولتے ہیں نا، اردو میں تمام بولتے ہیں، عربی والے کلو بولتے ہیں. اور یہاں پہ کلو اس سے لگایا گیا ہے اہتمام پیدا کرنے کے لیے کہ دنیا میں جو بھی شے ہے، زمین پہ، آسمان پہ، کائنات میں، زمین آسمان کے بیچ میں، زمین کے نیچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو یہاں پہ کلو جو لگایا گیا ہے، مرکب بنایا گیا ہے، یہ طاقت اہتمام پیدا کرنا اللہ کے لیے. ایسے آنکھیں نکال کے بولو تمام شے پر صرف اللہ. اچھا تو ابھی دیکھیے ریویژن کلاس کے لیے آپ لوگ میں سے 7 لوگوں کے نام آئے،
7 لوگ تیار ہے اور باقی بھی لوگ اگر تیار ہے تو کل واٹس ایپ چیٹ ہفتے کے دن جیسا اوپن رہتا تو آپ اپنا سجیشن دیجئے کون کون آنے والے ہیں، تو ان کی آپ لوگوں کی تمام کی تعداد کے حساب سے سر ہاں، اور کم سے کم ایک 15 لوگ بھی اگر آئے تو پھر کلاس لینے میں فائدہ ہے. تو کل جیسا کہ ہفتہ ہے، ہفتے کے دن رات میں 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک واٹس ایپ پہ گروپ چیٹ آپ کو اوپن ملے گا. آپ اس میں آپ کے سوالات بھی پوچھیے جو بھی پوچھنا ہے، اور اس کے علاوہ سنڈے کے دن کا ریویژن کلاس کا آپ لوگ سجیشن دیجیے. ٹائم کیا رہے گا سر؟ ٹائم ٹائم یہی رہے گا 9 بجے سے 10:30 بجے تک. جی سر. جزاک اللہ خیر. جی جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام القدیر ہاں جی سر سنڈے تھوڑا مشکل ہے سر، وہ ایک سلائڈ لیجیے نا سر. اس میں سر لا زیدن جالسن آیا اور لا جالسا الا زیدن آیا. یہ لا کون سی لا ہے سر؟ یہ اوپر کی یہ لا نفی سادی لا ہے اور یہ لا نفی جنس ہے. پہچاننا کیسے سر اس کو؟ یہ جالسہ کی وجہ سے اس سے پہچاننا ہے. سر اس میں اخف بھی ہو رہا ہے سر، اس میں ایسا بات ہے نا سر. اس میں اخف نہیں ہو رہا، نہیں سر یہاں پہ اخف ہو رہا. اس میں اخف بھی ہو رہا ہے سر. ہاں اخف بھی ہو رہا اور پلس حالت نصب میں بھی جا رہا. الف لام اور تنوین بھی نہیں ہے، اور پلس جو ہے تو آخری میں زبر آ گیا تو حالت نصب میں آ گیا. اچھا لیں گے سر جب اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے پیر القدیر کے دن تو جی بولیے بولیے. وہ جو اللہ کل شیء قدیر والی جو آیت ہے سر، تو ہاں اللہ تعالیٰ کا نام جب ہم القدیر کہتے ہیں تو الف لام کے ساتھ وہ پاورفل ہوتا ہے. تو پھر یہ جو آیت میں قدیرن ہے تو یہاں پر وہی میننگ دے گا وہ؟ وہی معنی وہی رہیں گے، لیکن گرامر کے اعتبار سے وہ نکرہ ہوا صرف. جزاک لا نفی جنس کا پیر کے دن انشاءاللہ سر لینے والے ہیں. اور کسی کو اور کوئی سوال ہے تو کل ہفتے کے دن آپ گروپ میں اندر میسج کر کے ڈالیے. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.